گر بھی گئے اور آج ہم نہ کسی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، نہ کسی سے گلے مل سکتے ہیں، نہ کوئی شادی ہو رہی ہے، نہ کوئی فنکشن، اور اگر ہو بھی رہی ہے تو سارا ورچوئل ہے. تو اس دوران میں بہت سارے مسائل بھی ہمارے کھڑے ہو گئے ہیں. جہاں تک بزنسز ہیں ان میں بھی پریشانیاں ہیں، جاب لیسنس ہے، تو گورنمنٹ کے بہت سارے پروگرام ہیں اور بہت سارے فلاحی ادارے ہیں تو بہت کام کر رہے ہیں. آج بھی ہم جیسے فوڈ کا ایریا ہے تو فوڈ بینک بہت زیادہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے. بہت سارے ادارے یہاں ہیوسٹن میں جس کا بھی میں خیال سلائڈ چلائیں گے تھوڑی دیر میں، تو یہاں فوڈ بینک ہر ہفتے ماشاء اللہ بہت زیادہ تعداد میں فوڈ مہیا کر رہا ہے. اور فوڈ اسٹیمپس کے لیے بھی انہوں نے فری کر دیا ہے کہ 2 مہینے تک کوئی بھی آپ اپلائی کرے گا تو فوڈ اسٹیمپس کو ملیں گے. جو ہمارے اسٹیمولس چیک ہیں وہ بھی ملنا شروع ہے. ابھی ہو سکتا ہے ود ان ڈے اور 3 days کے شاید فیصلہ ہو جائے کہ مزید چیک آئے. جن لوگوں کو نہیں ملا ہے ان کے لیے میں نے آلریڈی ساری تفصیل پچھلے پروگرام میں بتائی کہ آپ IRS.gov کی ویب سائٹ پہ جائیں /مائی پیمنٹ پہ آپ کنیکٹ کریں، وہ ساری انفارمیشن ان کو دیں. انشاءاللہ کئی لوگوں کو انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے اور ماشاءاللہ کئی لوگوں کو چیک ملا ہے. اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ کے لیے بھی رش بہت ہے، اوور لوڈیڈ ہے، بہت زیادہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہا ہے، لیکن انہوں نے دینا شروع کر دیا ہے. اور ان لوگوں میں جو سیلف امپلائڈ ہے، جو لوگ سیلف امپلائڈ ہے جیسے اوبر چلا رہا ہے، کوئی اپنا کوئی کام کر رہا ہے، ہینڈی مین ہے، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو بھی دیا جائے گا. یہ نہیں کہ اگر وہ امپلائڈ نہیں ہے تو اور بہت سارا ریلیکسیشن آپ کو جو ہے ان امپلائمنٹ میں ملنا شروع ہو گیا ہے. جہاں تک ہمارے ادارے جو ہیں یعنی IHGH ہے اور دوسرے مساجد ہیں، وہ جو زکوٰۃ صدقہ اور فطرہ دے رہے ہیں وہ اپنے طور پہ بھی پوری مدد کر رہے ہیں. ان کے پاس لمیٹیشنس ہیں، ہمارے ڈونیشنس اور ہماری زکوٰۃ بہت کم گئی ہے، لیکن وہاں بھی مسائل کیونکہ بہت سارے لوگ جو آ کے پھنس گئے وزٹرز ہیں، وہ اپنے پیسے ختم کر چکے ہیں، وہ کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کی زندگی بڑی اپسیٹ ہو گئی. جہاں تک لیگل اسپیکٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ مثبت چودھری صاحبہ ماشاء اللہ بتائیں گی. تو یہ سارے مسائل ہیں، تو اب ہم نے سب نے مل کے ان لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے. بہت سارے ادارے جو ہمارے جنہوں نے زکوٰۃیں لی ہیں جو IHGH کے علاوہ ہیں، مجھے ان کی طرف سے کوئی مطلب اطمینان بس جواب نہیں مل رہا ہے کہ وہ واقعی وہ جو فنڈ ان کو ملا ہے وہ دے رہے ہوں گے. بہرحال میں اس کو کوشچن نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس جو ایکسپیرینس ہے اتنی فیملیز آ رہی ہیں، IHGH از اوور برڈن، مسجدیں بند ہیں، وہ لوگوں کے پاس کوئی ایسے راستے نہیں جو ان کو کانٹیکٹ کریں، ٹیلی فون، ٹیکسٹ، آن لائن. لیکن جو پرسنل وزیٹیشن ان دا مساجد ہے وہ کچھ کرنا پڑے گا IHGH کو. ساری مساجد کو خاص طور پہ ایک ٹائم بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ بندہ جس کی ضرورت ہے وہ مسجد میں پہنچ جائے. مطلب اتنا جب مسجدیں کھل گئی ہیں، نمازیں شروع ہو گئی تو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ تو مسائل پھیلے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے کہ بھوکے ننگے امریکہ میں زیادہ ہیں، جو سفید پوسٹ ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور مسائلوں کا ڈھیر ہے. میڈیکل پرابلمز ہے، فوڈ پرابلمز ہے، رہنے کا مسئلہ ہے، فیملی وائلیشنز ہے، ڈرگ ایبیوز ہے، سارے مسائل ایک ساتھ بڑھ چکے ہیں. تو خدا را باقی انفارمیشن ہے. مرفانی صاحب کی یہ جو ناظرین اس وقت ایک دکھ سے بری ہوئی شکایت ہے وہ یہ بھی ہے، سمرائز اس کی یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اور بردر جارج فلائیڈ کی ڈیتھ کے بعد ہونے والے پروٹیسٹ کی وجہ سے یہ سارے معاملات نے کنٹری کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر پچھلے 3 دنوں میں ناظرین ہیوسٹن کے اندر 30% کووڈ کے کیسز زیادہ ہو گئے ہیں. ہاسپٹلس کے اندر وینٹیلیٹرز پہلے 25% کیپیسٹی پہ استعمال ہوئے تھے، اب کتنے ہسپتال ہیں جہاں پہ وینٹیلیٹر 75% کیپیسٹی میں استعمال ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ناظرین ایک عام زبان میں کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو 3 4 5 یا 6 دنوں میں وینٹیلیٹرز ان لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے ہیوسٹن ایریا میں جن کو شاید دل کا کوئی عارضہ ہو، کوئی دوسری بیماری ہو جس کی وجہ سے ان کو ان وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہو. کتنے ہسپتالوں میں وہ پیک پہ پہنچ چکے ہیں، پیشنٹس لینا بند کر دیے ہیں. اور یہ ایفیکٹ ہے جو آج سے کچھ ہفتے پہلے اسٹیٹس کھلی تھی ان کا، یہ اس کی ویو ہے. اب بردر جارج فلائیڈ کے سلسلے میں 60-70 ہزار لوگ جو کافی دفعہ اکٹھے ہوئے ہیوسٹن کے ایریا میں اور اکراس دا کنٹری اکٹھے ہوئے ہیں، 5-10 دن بعد اب اس کی ایپیسوڈ آئے گی. تو دیر از نو لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل ایز فار ایز کووڈ از کنسرنڈ ایٹ دا مومنٹ. بٹ مسائل جو ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہیوسٹن کی مایا ناز اٹارنی ہمارے ساتھ، ایک جانا پہچانا نام ہے، سوشل ورکر ہیں، وومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں مرفانی صاحب کے ان کو پروگرام پہ لانے کے لیے. امیگریشن اٹارنی مصباح چودھری کو ہم ساتھ لیتے ہیں. مصباح چودھری ہیوسٹونین ہیں، کافی عرصے سے ہیوسٹن میں لا پریکٹس کر رہی ہیں، امیگریشن لا پریکٹس کر رہی ہیں. اس کے علاوہ
کولیشن آف امریکن فار پولیٹیکل اینڈ سوشل اویئرنیس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ بیک گراؤنڈ میں کام کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مرفانی صاحب کے ساتھ بھی کچھ والنٹیئر کر رہے ہیں. Ms. Pachaudhry, it's such an honor to have you as an immigration attorney from our community, and let's jump right into it. Marfani Saab did not leave anything for you. Marfani Saab, go ahead and tell us about your guest a little bit as well. پہلے میں انشاءاللہ مصباح تھینک یو ویری مچ فار یور کمنگ. آپ نے ہمارے پروگرام کو عزت بخشی ہے اور میں آپ کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں. اور آپ اٹارنی کے علاوہ جو سوشل ورکر ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس سلسلے میں میرا آپ سے مسلسل رابطہ رہا ہے. جب بھی میں نے آپ کے پاس کسی کو بھی بھیجا ہے تو آپ نے کھلے دل سے اس کی مدد کی ہے. نہ کہ سوائے لیگل میٹرز آپ نے لوگوں کو جاب دلائی ہے, آپ نے لوگوں کو دوسری مدد فائنینشیل مدد کی. یہ آپ کا جو ایک دوسرا حصہ ہے اس میں ضرور بات کروں گا. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ میں آپ کے بارے میں کیا کہوں, ہم لوگ نصیب دار ہیں کہ آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی ٹیم ہے, ہم نے بہت سارے لیگل پروگرام اور سیمینار کیے جس میں آپ بہت آگے رہے ہیں. تو اب آپ کو ہر چیز آپ نے بولنی ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو سوال پوچھ رہے ہیں. جزاک اللہ, ویلکم آن بورڈ. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اور مصباح چودھری میرا نام ہے, اور جیسے مارفانی صاحب نے بھی کہا اور محمد علی نے بھی کہا کہ جو ہم سے آئی ایم انوالوڈ ان مینی وینچرز اور سوشل ورک, کمیونٹی سروسز. مسٹر مارفانی کے ساتھ مل کے کافی ہم کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ امیگریشن جو کہ بیسک میرا گراؤنڈز ہیں, جن گراؤنڈز پہ میں کام کرتی ہوں, لیگل گراؤنڈز پہ, اور لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ ایک فی سبیل اللہ کام ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم امیگریشن کو ہی اگر لیں, وہ لوگ جو پریشان حال ادھر آتے ہیں اور جن کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ امیگریشن پلیٹ فارم پہ ہیلپ کی, اور ان کو پتا ہو, اویئرنیس ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں پتا ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اگر وہ دوسرے ملک سے آئے ہیں, ایز اے وزٹر آئے ہیں یا کسی اور اسٹیٹس میں آئے ہیں, تو وہ کس طرح ادھر اپنی زندگی کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں. جہاں تک ہمارا, ہم ابھی کمیونٹی سروس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں کووڈ 19 کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں. اور جہاں یہ ایسوسیشنز اور آرگنائزیشنز بیٹھی ہوئی ہیں اور ہینڈ ان ہینڈ یہ لوگ کام کر رہے ہیں سب کے لیے, مسٹر مارفانی ڈے اینڈ نائٹ, یہ اور ان کے جو گروپ ممبرز ہیں اور یہ اور جو ان کے ہیلپرز ہیں, جس طرح یہ لوگ ڈیووٹیڈلی کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت ہماری کمیونٹی اور وہ کمیونٹیز جو کہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں, ہم سارے ادھر مل جل کے رہتے ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ مل جل کے اس چیز کو کم کیا جائے, اس بیماری کو, اس کے اثر کو, اس کے ایفیکٹس کو, بجائے اس کے کہ چیزوں کو فالو نہ کیا جائے, ہدایات کو, انسٹرکشنز کو فالو نہ کیا جائے, اور یہ چیز ہمارے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو. اور اس کے علاوہ جو اکنامک اور جاب سیکٹرز میں اور ویسے گھر میں ڈومیسٹک ریلیشنز میں جو بہت بڑی ایک دراڑ آ رہی ہے اور بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے, اس کو فل کرنا, اس چیز کو اوور کم کرنا ہمارے لیے ٹف سے ٹف ہوتا جائے گا. اس سے پہلے, پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم بریفلی آپس میں بات کر رہے تھے کہ اتنے سارے ایشوز اس وقت اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں اور اتنے گراؤنڈز پہ ایک قسم کا جہاد جاری ہے کہ ہر ایک کا اس میں انوالو ہونا اور مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا, اور جو بھی جس سیکٹر میں سمجھتی ہوں کہ جس کی ایکسپرٹیز ہے, جیسے اگر مارفانی صاحب ہیں, ان کا ماشاءاللہ سال ہر سال کا ایکسپیرینس ہے کمیونٹی سروس کا, یہ لوگوں کو جانتے ہیں, ہیوسٹن کمیونٹی میں ان کا بڑا نام ہے اور لوگ ان کے پاس آتے ہیں. دیکھیں, آپ کے پاس اگر کوئی ہیلپ کے لیے آتا ہے اور آپ سے مدد مانگتا ہے, میرے خیال میں ایک یہ بڑا نیکی کا کام ہے اور ایک بہت بڑا کام ہے جس کی بڑی ویلیو ہے, کیونکہ ہر کوئی کسی کے سامنے جا کے نہیں بات کرتا. اپنے دل کی بات کرنا یا اپنی مجبوری بتانا, اپنی پریشانی بتانا, اور پھر اس کو جہاں آس ہو ظاہرہ وہ جائے گا, اس کو جہاں امید ہوگی کہ جو مجھے ہیلپ ملے گی اور یہاں سے مجھے مدد ملے گی. ایک اور بہت بڑے جس ہم چیز کو فیس کر رہے ہیں
وہ ہے ڈومیسٹک ریلیشنز میں، کہ ڈومیسٹک وائلنس کی بہت زیادہ رپورٹس آ رہی ہیں، وہ کوئی بھی اسٹیٹ ہو، آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ نیوز اٹھا کے دیکھیں، آپ میڈیا چیک کریں، آپ کو پتہ چلے گا جی بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، یا وہ لوگ جو باہر سے ٹریول کر کے ادھر آئے ہیں اور آ کے ادھر پھنس گئے ہیں، یعنی کہ پھنس گئے اس سینس میں ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگ جو وزٹ کرنے آئے تھے یو ایس میں، اور وہ تھوڑے ان کا پلان تھوڑا تھا، ان کے بزنسز ہیں دوسرے ملکوں میں، گھر بار ہیں، بچے ہیں، ان کو واپس جانا ہے، جابز ہیں ان کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب ادھر پھنس گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، اور ان لوگوں کے لیے ایک بڑی ٹف سچویشن کریٹ ہوگی ہے، فلائٹس بند ہیں اور ٹریول ڈاکومنٹس بند ہے جو ایشو نہیں ہو رہے ہیں، یا ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے ٹریول کرنے کی، تو اس ٹف سچویشن میں کس طرح ہم لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں؟ بلیو می، اگر مسٹر مارفانی اور اس طرح کے اور ان کے جس طرح ایسوسیٹس ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں جو مل کے دن رات محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے آرگنائز کر رہے ہیں، اگر یہ سب نہ ہو تو بہت ہی مشکل حالات پیدا ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ذکر کیا تھا مسٹر محمد نے کہ جی جو بردر فلائڈ کے سلسلے میں آج کل پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور لوگ جو سب باہر نکل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان دا ہیٹ آف جو ایک قسم کی سچویشن یا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوئی ہے، اس میں باقی چیزوں کا کووڈ 19 یا ہیلتھ ایشوز وہ اتنا میرے خیال میں آپ ذہن میں آپ کے نہیں آتا، یا آپ جو ان سے اور چیزوں پہ زیادہ اس وقت دھیان دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بیک گراؤنڈ میں ذرا چلا جاتا ہے۔ لیکن اٹس ویری امپورٹینٹ کہ جس طرح ہیوسٹن میں، ہم ہیوسٹن کی بات کریں گے، ہم دیکھیں سارا یو ایس ہمارا ہے، لیکن ہم ہیوسٹن میں ابھی بیٹھے ہیں تو ہم ادھر کے ایشوز کو زیادہ انلائٹن کریں گے اور ادھر کے ایشوز کو زیادہ بولیں گے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس زیادہ آئے اس سلسلے میں۔ تو جس طرح کیسز آ رہے ہیں سامنے، جیسے مارفانی صاحب نے بھی کہا کہ جی بچوں میں آ رہے ہیں اور لیڈیز میں بہت زیادہ آ رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ اب جو پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں، 60,000 کا کراؤڈ اکٹھا ہوا تھا ادھر، اور آپ کتنی سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو بہت سارے ہمارے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، میڈیکل اکوپمنٹس کم پڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ جابز نہیں ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان ساری چیزوں کی کمی کی وجہ سے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ سب مل کے کام کریں اور ان ایشوز کو حل کریں۔ ایک اور ایشو جو ہے وہ میں ابھی بولنا چاہوں گی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس کو بیک گراؤنڈ میں ڈالا گیا ہے، کوئی اتنا اس پہ بولا نہیں جا رہا، اور ڈائریکٹلی مسٹر مارفانی جو سے ہیں، ظاہر ایز اے کمیونٹی سروس ان کا انوالو ہے اس چیز میں، کہ لوگ رینٹ نہیں دے پا رہے، لوگ بےچارے رینٹ نہیں دے پا رہے، لوگ اس کی اپنی پے نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے نہ وہ، ان کو یہ بھی خطرہ ہے ان کو اپارٹمنٹ سے، ان کے گھروں سے نہ نکال دیں، ان کے مارگیجز نہیں پے کریں گے، اپنے یوٹیلیٹی بلز نہیں پے کریں گے تو کیا ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ اسسٹنس یا ان سے بات کرنا، گائیڈ لائن لینا، پھر وہ لوگ مخیر حضرات جو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ان سے ہیلپ لیں اور اس کو پراپر طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ دس از ویری امپورٹنٹ ایٹ دس ٹائم۔ میں اس سلسلے میں مصباح جو امپورٹنٹ جو سوالات مسلسل آ رہے ہیں اس کا جواب آپ سے چاہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے آ کے یہاں ایز اے ٹورسٹ ویزا پہ آئے ہیں، فیملی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ جاب پہ بھی تھے اور اب ان کے بزنسز بھی تھے، وہ اب آ کے کسی کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور وہ ٹیمپرری پیریڈ کے آئے لیکن وہ پھنس چکے ہیں۔ اب ان کے لیے ایک تو لیگل میٹر جو ہے، تو اس سلسلے میں ان کی کیا صورت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ویزا اگر ختم ہو رہا ہے تو کیا کریں، ایکسٹینشن اپلائی کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ آ گئے، ان کے وہاں جاب چلی گئی ہیں، بزنس ویسٹ ہو گئے، وہ بیچارے کوئی ان کو کوئی اسٹوڈنٹ ویزا دے رہا ہے، کوئی بولا ادھر شادی کر لو، تو بڑا اس قسم کا ان لوگوں میں ایک پرابلم ہے۔ پہلے میں سمجھتا ہوں آپ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں اور آپ اپنا ان پٹ دیں تاکہ وہ لوگ جو ہے زیادہ اس وقت پریشانی میں ان کو کچھ گائیڈ لائن ملے، پلیز۔ دیکھیں جی بالکل، دیکھیں جہاں تک امیگریشن کا تعلق ہے، آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ٹل جون 4 جو کہ اب کھل چکا ہے، انہوں نے انٹرویوز پہ ہالڈ لگایا تھا۔ اس کے علاوہ امیگریشن کا سارا پروسیس ویسے ہی چل رہا تھا، جو کہ ہم اپلیکیشنز، پٹیشنز فائل کرتے ہیں، کیسز فائل ہوتے ہیں، دیٹ از آل گوئنگ آن دیئر۔ یہ بہت مسکنسپشن جو آپ نے ذکر کیا کہ جو لوگ ادھر آئے ہیں ان کو کئی لوگوں نے کہا جی آپ آئے ہیں، آپ ادھر پھنس گئے، آپ کو کچھ فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ تو جی کووڈ کی وجہ سے ادھر ہے تو آپ واپس چلے جائیں گے۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل مسکنسپشن ہے۔ یو کین ناٹ anyone who is staying in or within United States cannot break the federal rules and regulations of the United States جو کہ امیگریشن ہے۔ آپ اگر ادھر موجود ہیں، آپ کو وہ اس میں ایزی
वे आउट दे रहे हैं, आपको वे आउट बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है आप जो उनसे जरूर अपनी एक्सटेंशन फाइल करें, अगर आप इधर मौजूद हैं आप रीजन दे दें कि जी मैं कोविड-19 की वजह से इधर स्टक हो गया हूं या मुझे अपनी एक्सटेंशन फाइल करनी पड़ रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको एक्सटेंशन नहीं फाइल करनी, या अगर आपकी किसी किस्म की चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन ड्यू है या आपने स्टूडेंट वीजे पे भी अगर जाना चाहते हैं, देखें जो लोग, कई लोग विजिट करते हैं इधर और जिन लोगों के पास सामने अपॉर्चुनिटी उनको नजर आती है, उनकी प्लानिंग में शामिल होता है कि उन्होंने स्टूडेंट वीजे पे जाना है या उन्होंने किसी और किस्म का चेंज ऑफ स्टेटस करना है, तो वो जरूर उनकी उस पे अपनी एप्लीकेशंस और पिटिशंस पे काम करें, क्योंकि इमिग्रेशन इंटरनली सारी एप्लीकेशंस और पिटिशंस जो सी है एक्सेप्ट भी कर रही है, रिसीट्स भी इशू कर रही है। बायोमेट्रिक्स पे उन्होंने हॉल्ट है कि जो फिंगरप्रिंट्स वो कहते हैं और आम में हम उस पे हॉल्ट है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी ठीक है हम जब खोलेंगे हम आपको रिस्केड्यूल करेंगे उसके लिए, लेकिन बिल्कुल ये मतलब नहीं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो उनसे ये फाइल ना की जाए। एप्लीकेशंस फाइल करना, अपनी एक्सटेंशंस फाइल करना स्टे के लिए, लीगल स्टे में अपने रहना इधर बहुत जरूरी है इन द मीन वाइल। अच्छा, ये लीगल स्टेटस जो है, मुझे थोड़ा सा एक सवाल पूछना है, वो आ चुके हैं तो वो एक्सटेंशन के लिए क्या है, उसकी फीस क्या है, उसका तरीकेकार क्या है, तो वो थोड़ा सा वजाहत कर दे तो कम से कम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को मैं भी हैंडल कर सकूं, जो कि मैं हैंडल कर रहा हूं। जहां तक एप्लीकेशन की बात है कि आप एक्सटेंशन किस तरह फाइल करते हैं, हम उसको फॉर्म फॉर एप्लीकेशन इज फॉर्म I-539 और आप जो उनसे आप इमिग्रेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, यूएससीआईएस की वेबसाइट से, अटर्नीज के से हेल्प ले सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल जो आपकी हेल्प करते हैं। आपको उसके साथ फीस आपकी है $370 की और फिंगरप्रिंट्स की आपको फीस देनी होती है विच इज $85, लेकिन आप उनको साथ ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर फी वेवर, आप उनको विद अंडर सर्टेन कंडीशंस आप उनको ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ कि आई एम अनेबल टू पे माय फीस, देन इट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। Let's take a small break. We are a little bit overdue for the break, and we'll come right back. Hold that thought. Excellent question, Mr. Marfani. We'll see you right back after a short break. जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ यूएस आया था विजिट वीजा पे और मेरा प्लान, मैं फैमिली के साथ यहाँ मौजूद हूँ, ओके जी, मैंने अपना एक्सटेंशन ऑलरेडी फाइल कर दिया है एक्चुअली, और मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ, जो मेरा एम्प्लॉयर है मुझे स्पॉन्सर करने को तैयार है, और तो एक्चुअली अब मुझे आगे प्रोसीड करना है, तो मेरी एक्सटेंशन मैंने फाइल की थी लेकिन मुझे अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, और मैं इमीडिएटली जो है उसको अपना स्पॉन्सरशिप जो लॉयर के थ्रू जो स्पॉन्सरशिप होती है वो मैं करना चाह रहा हूँ लेबर सर्टिफिकेशन के लिए। तो व्हाट वुड बी द गाइडेंस टू प्रोसीड फर्दर, और क्या मुझे अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए फर्दर स्टूडेंट वीजा के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा, या मैं अपनी वाइफ को कन्वर्ट करा दूं और मैं अपना साथ ही साथ साइमल्टेनियसली अपना लेबर सर्टिफिकेशन जो है वो फाइल कर दूं। तो आई नीड गाइडेंस ऑन दिस, और मैं बहुत ज्यादा कश्मकश में उसका मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से प्रोसीड करना है। जी मिसबा, आपने क्वेश्चन सुन लिया? जी बिल्कुल सुन लिया मैंने इनका सवाल, और इनका सवाल बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक्सटेंशन डाल दिया है टाइमली मैनर में, विच इज इम्पोर्टेंट। आप जब एक्सटेंशन फाइल करते हैं तो आपको पहले कुछ दिनों में रिसीट आ जाती है, जो कि थोड़ी डिले से आ रही थी, यानी कि अगर 10-15 डेज में आपको रिसीट मिल जानी चाहिए। इफ यू गेट द रिसीट नोटिस, उसके बाद टाइम पीरियड स्टार्ट होता है उसको प्रोसेस करने का इमिग्रेशन के लिए, जो कि यूजुअली इज 3 to 4 months। तो ये नहीं होता है कि आप जब जिस वक्त एक्सटेंशन फाइल करते हैं उसके फौरन बाद आपको जवाब आ जाएगा, उसके जवाब आने में थोड़ा टाइम लगता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आपने ऑलरेडी जो काम कर दिया है कि आप टाइमली मैनर में बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ योर स्टे आप अपनी एक्सटेंशन डाल दें, जो कि आपने डाल दिया। दूसरा आपका सवाल है कि जी आप उनको स्पॉन्सर करने को एक एम्प्लॉयर तैयार हैं, जो कि जिसको हम उर्फे आम में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस कहते हैं, कि वो आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं और जो उनसे उस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं आप, यानी आप बिल्कुल उस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टे हेयर। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त पहले वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के साथ स्टार्ट होगा, और दैट प्रोसेस टेक्स लाइक 3 to 4 months इनिशियली, प्रिवेलिंग वेज आना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एवरीथिंग इन्वॉल्व, वो टाइम लेता है अपना। इसलिए अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर मौजूद है तो वो बिल्कुल आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वक्त स्टेटस पे, पेंडिंग स्टेटस पे,
आपने तीसरा सवाल किया F1 के बारे में कि जी मुझे कोई और स्टेटस अपना चेंज करना पड़ेगा कि मैं F1 पे जाऊं, मैंने अभी एक्सटेंशन डाली है। देखिए, टू ऑल द लिसनर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एक्सटेंशन जिस वक्त आप फाइल करते हैं वो 6 मंथ्स टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए होती है। आपके वैलिडिटी डेट से लेके 6 महीने आगे आप अपना एक्सटेंशन ऑफ स्टे डालते हैं। अब 6 महीने में आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस तो एम्प्लॉयमेंट बेस वाला कंप्लीट नहीं होना, वो रफली डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू बिलोंग टू, टाइम पीरियड उस पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो आप अगर उस दौरान ड्यूरिंग द पेंडेंसी के आपका वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस चल रहा है, अगर उस प्रोसेस के दौरान आपको यूएस में मौजूद रहना है तो आपको चेंज ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो स्टूडेंट वीजा हो, L1 हो, H1B हो, कई किस्म के वर्क वीजा होते हैं, E2 है। अगर आप किसी भी स्टेटस में अप्लाई करें बट यूएस में रहने के लिए, टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस व्हिच इज ग्रीन कार्ड, यू हैव टू बी इन स्टेटस एट ऑल टाइम्स। तो वो आपको अपना नॉन इमिग्रेंट स्टेटस हर सूरत में मेंटेन रखना होगा। और इस प्रोग्राम के बाद भी अगर आपको कोई ज्यादा सवालात करने हो, मिसबा चौधरी को हम दोबारा इनवाइट करेंगे प्रोग्राम पे, और महमूद मरफानी साहब के नंबर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। जी महमूद मरफानी साहब। मिसबा, हम बात कर रहे थे जो विजिटर्स हैं उनके एक्सटेंशन के लिए, और आपने बताया कि उनका एक्सटेंशन फाइल करना जरूरी है, और आपने कहा कि 350 रुपए कोई फीस है। वो जो फीस है वो अगर फैमिली है उनकी, वो खुद है, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, तो क्या हर एक की अलग फी भरना पड़ेगी या एक ही फी है सारी फैमिली को? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं जी। आप जब एक फैमिली मेंबर से बिलोंग करते हैं, से एक फैमिली है, पांच बंदों की फैमिली है, मियाँ बीवी है, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे जो हैं वो 21 से अंडर की एज में है, यानी कि माइनर है, ठीक है, और पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो उन सब की एक सिंगल एप्लीकेशन फाइल होगी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ स्टे। एक ही एप्लीकेशन पे सारे एड इन हो जाएंगे। पहले ये होता था कि एक एप्लीकेशन होती थी जो कि फॉर्म I-539 है, और उस पे एड इन हो जाता था सबका नाम। अब दे हैव चेंज्ड इट अ लिटिल बिट। अब क्या होता है कि ईच डिपेंडेंट को I-539A, दिस इज अ सप्लीमेंट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद योर मेन एप्लीकेशन, वो आपको एड इन करना पड़ता है। बेस्ड ऑन दैट आप के फैमिली मेंबर्स एड इन हो जाते हैं, और उसकी बेस पे आपको फिंगरप्रिंट्स सबके होने होते हैं। फिंगरप्रिंट्स के लिए हर एक की फीस जाती है विच इज $85 सेपरेटली, लेकिन जो मेन आपकी एप्लीकेशन की फीस है विच इज $370 राइट नाउ, वो आपकी सिर्फ एक एप्लीकेशन होती है और सिर्फ एक ही फीस जाती है। अच्छा, एक और सवाल मैं आज के हालात के लिहाज से जनरल पब्लिक के लिए कह रहा हूँ कि वो सारे लोग जो सिटीजन के अलावा स्टेटस में है, मतलब ग्रीन कार्ड है या स्टूडेंट है या किसी और वीजा पे है, तो आपको पता है कि जब वो गवर्नमेंट की कोई फूड स्टैम्प या कोई गोल्ड कार्ड या मेडिकेड के लिए जाते हैं, तो आजकल ये सुना जा रहा है कि खास तौर पे हमारे टेक्सास स्टेट में ये कहा जाता है कि अगर आप गवर्नमेंट की कोई हेल्प ले रहे हैं तो आपका सिटीजनशिप के लिए आप क्वालिफाई नहीं होते, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हैं फूड स्टैम्प के लिए या गोल्ड कार्ड एप्लीकेशन या जो गवर्नमेंट की हेल्प मिलती है उससे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन। इस बारे में थोड़ा क्लियरिफाई करें। ग्रीन कार्ड बेस पे कह रहे हैं, ग्रीन कार्ड बेस पे ये कह रहे हैं, इसका ग्रीन कार्ड है अगर वो ये करते हैं तो। हाँ जी, इवन ग्रीन कार्ड या वो लोग जो हमसे अभी किसी और स्टेटस में है अंदर और वो असिस्टेंस ले रहे हैं, आप पब्लिक असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट रिसेंटली देखें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इंट्रोड्यूस किया पब्लिक असिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, जो कि चेंज किया गया। इट वाज ऑलवेज देयर। ये मैं आई विल लाइक टू पुट इन अ क्लैरिफिकेशन कि हम जिसको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट और वो फॉर्म्स कहते हैं जो कि एड इन होते हैं आपके ग्रीन कार्ड प्रोसेस में, इट्स ऑलवेज देयर। लेकिन ये नहीं हुआ कि कुछ चेंज हुआ, हाँ उनके नाम चेंज कर दिए, कुछ फॉर्म्स ऐड इन कर दिए हैं, बट इट इज ऑलवेज क्वेश्चन कि आप अगर इधर आए हैं, यू आर नॉट बिकमिंग अ पब्लिक चार्ज। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट विच लाइज बिहाइंड इट। अब आप दो सिचुएशंस हैं, एक ये सिचुएशन है कि जिस वक्त पब्लिक असिस्टेंस का इंट्रोड्यूस किया डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने, बहुत नया कॉन्सेप्ट एडेड है, एडेड इन टू द न्यू वन, उन्होंने नई फॉर्म्स वगैरह आप एड इन करें और आपने सर्टन किस जगह पे आपने कोई पुरानी असिस्टेंस की एट द टाइम ऑफ फाइलिंग फॉर योर एडजस्टमेंट और फाइलिंग फॉर योर सिटीजनशिप।
दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस वक्त सिचुएशन है विच इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, जिसमें के लोग जॉब्स खो चुके हैं, इधर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, उन्हें मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, उन लोगों को बहुत सारी हेल्प्स आउट चाहिए, जैसे हमने वो रेंटल उसका भी जिक्र किया, हाउसिंग उसमें उनको हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, फूड में चाहिए, पैंट्रीज के लिए वो जा रहे हैं. सो द थिंग इज दैट कि उसको अगर आप लें तो दीज आर टू टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. कोई चीज अभी अप टिल नाउ एज ऑफ टुडे इमिग्रेशन ने अनाउंस ऐसा कुछ नहीं किया, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने या गवर्नमेंट ने, कि अगर आप इन हालात में अंडर कोविड जो असिस्टेंस ले रहे हैं दैट विल गो और काउंटेड अगेंस्ट यू. सो ऐसी कोई न्यूज हमारे पास नहीं है जो but under regular circumstances, Misbah, अगर आप ले रहे हैं, an absolute disqualified for the citizenship? No, it's not an absolute disqualifier. There are certain conditions. देखिए, आपको नहीं पता, कोई बंदा खुदा न खास्ता किसी ऐसी हेल्थ कंडीशन में इन्वॉल्व हो जाता है, वो उसकी हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ गई है, जो विजिट वीजे पे आया हुआ है इनिशियली, और उस बेचारे को पता भी नहीं कि क्या हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया, उसको लेके जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में. आम हालात की मैं बात कर रही हूँ. तो उस हालात में अगर वो कोई असिस्टेंस इस तरह की ले लेता है, या अगर उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसके पास एक फॉर्म लेके आया है, उसने भर दिया या उसको साइन कर दिया, दैट इज अ टोटली सेपरेट सिचुएशन, सो एंड इट कैन बी हैंडल्ड. देखिए, मैं लोगों को ये जी प्रैक्टिकल सिनेरियो मिसबा आपको मैं एक देता हूँ. एक फैमिली आई है, विजिट पे आए हैं, एंड दे शुड हैव टेक्निकली रिसीव्ड एन इंश्योरेंस अपने लिए, ठीक है. अब वो विजिट पे यहाँ पे थे, हॉस्पिटल इमरजेंसी होगी, चले गए, उन्होंने मेडिकेट का फॉर्म भर दिया, वाइफ प्रेग्नेंट थी, इमरजेंसी मेडिकेट ले ली, फ्री में बेबी भी हो गया, सब कुछ. नाउ दे फाइल फॉर इमिग्रेशन, और उसके लिए हाउ इज गोइंग टू नेगेटिवली अफेक्ट देयर केस? देखें, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज गोइंग टू नेगेटिवली अफेक्ट देम. उसकी वजह क्या है? आप गए, आपने असिस्टेंस के लिए अप्लाई किया, बिल्कुल जो आप चिप की बात कर रहे हैं, कि आप गए, आपने जाके कहा कि जी वो वाइफ वाज प्रेग्नेंट, दे एंटर यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन शी वाज स्टिल प्रेग्नेंट, राइट? दे डिडंट अनाउंस कि जी किस वजह से, मेडिकल रीजन की वजह से नहीं आए, इधर आए, गए, जाके उन्होंने असिस्टेंस के लिए हॉस्पिटल गए, जाके चिप के फॉर्म्स भर दिया. वही जो मैं पहले बात कर रही थी कि उन लोगों का तो मेडिकल जो बैठे हुए हैं हॉस्पिटल्स में, उनका तो रोज का ये काम है. केस वर्कर्स उनके आते हैं, आके आपसे पूछते हैं, अच्छा जी आपको चाहिए ये नहीं, ये भर दे. आप अगर भर देते हैं, एंड इफ यू आर लाइंग ऑन दैट, और इफ यू आर गिविंग मिस इन्फॉर्मेशन ओवर देयर, दैट गोज अगेंस्ट यू. और अगर आपने ऐसी कोई असिस्टेंस किया, अब आपने जैसे ये कहा कि जी उसको वे आउट है उससे निकलने का, तो मैं हमेशा अपने जो मुझसे मशवरा करते हैं लोगों, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं कहती हूँ कि इफ एनीथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, द बेस्ट वे इज टू पे ऑफ द मेडिकल बिल्स. पे ऑफ, उनसे आप कह सकते हैं कि उसको उस वर्कआउट ऑन दिस, मेक इट लाइक accessible, या उसको इतना कम कर दें कि हम पे कर सकें, हमारी पहुंच में हो, हम पे करना चाहते हैं, आप पे करें, और उनसे क्लियरेंस का जरूर ले लें एक लेटर कि जी हाँ ये हमने अपना बिल पे कर दिया, और हमारे पास ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमने जो से पब्लिक चार्ज हम बने हैं, या हमने इस तरह की गवर्नमेंट से असिस्टेंस ली है जिस वक्त हम नहीं ले सकते. विजिटर्स को क्या सजेस्ट करेंगे जो विजिटर्स आते हैं? मरफानी साहब आपकी तरफ आते हैं. लास्ट क्वेश्चन इस समय एक ये चैट रूम में आ रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन, कि जो विजिटर्स आते हैं क्या वो अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस लेके आए? हाँ जी बिल्कुल, ट्रैवलर इंश्योरेंस. और मेरा मशवरा यही है कि आप प्लीज जब ट्रैवल करें, बिकॉज यू आर एंटरिंग एज विजिटर्स, राइट? आप कह रहे हैं कि जी हम आ रहे हैं, हम फिर आने आएंगे और हम चले जाएंगे. सो आप जिस वक्त आए तो द बेस्ट लाइन ऑफ एक्शन शुड बी दैट यू कैरी योर ट्रैवलर्स इंश्योरेंस. जी मरफानी साहब, मुझे दो सवाल करने हैं. एक तो आपने जो हॉस्पिटल वाली बात की चिप या मेडिकेट के लिए, तो हर हॉस्पिटल में जैसे आपने कहा मिसबा के केस वर्कर होता है, और वो जब भी हॉस्पिटल जाए तो केस वर्कर से बात करें. वो फाइनेंशियल एड भी हॉस्पिटल से मिल जाती है, और उसके इंस्टॉलमेंट भी करते हैं. आप उसके 10 से 50 रुपए तक का भी महीना कर सकते हैं. तो ये वे आउट. मेरा जो सवाल आपसे मिसबा वो ये कि जो लोग स्पॉन्सर करते हैं किसी भी ग्रीन कार्ड को, और वो उनकी साइन या उनकी स्पॉन्सर की बेसिस पे ग्रीन कार्ड इश्यू होता है, उसकी कोई टाइम फ्रेम है कि एक आदमी ने, मैंने किसी को स्पॉन्सर कर लिया तो मेरी लाइबिलिटी क्या कितने 6 महीने रहती है, जब तक वो ग्रीन कार्ड या सिटीजन न बन जाए तब तक रहती है? जब ये क्वेश्चन हमारे तब तक रहती है. तो ये इस चीज पे ना मैं इसलिए मुझे आई है कि ये बड़ी मिसकंसेप्शन है. लोग समझते हैं जी हमने बस वो भर दिया था, जी वो हो गया ग्रीन कार्ड, हमारी जिम्मेदारी गई. और भाई ग्रीन कार्ड के बाद ही की तो जिम्मेदारी आपने उठाई है.
एफिडेविट ऑफ सपोर्ट का मतलब ही ये है कि आपने जिस वक्त इनको आप ग्रीन कार्ड दे दें, जब आप इनको ग्रीन कार्ड दे देंगे उसके बाद सिटीजन बनने तक मैं लायबल हूं कि ये पब्लिक चार्ज नहीं बने. So it's a 5 years long or 3 years long depending on के स्पाउसल वीजे की बेस पे आप ग्रीन कार्ड की बेस पे फाइल कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए, या 5 साल के बाद किसी भी और किस्म के बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो जिम्मेदारी जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जो बढ़ता है, स्पॉन्सर इज रिस्पॉन्सिबल अंटिल दैट टाइम. अब फॉलो अप क्वेश्चन है मिस बोस पे. मरफानी साहब, ये आपने जो क्वेश्चन किया बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये. मेरे पास मेरे ख्याल से चैट रूम में 3 क्वेश्चन इसके साथ आ गए हैं कि अब बंदे ने फाइल कर लिया, मरफानी साहब ने उसके लिए अनाउंस कर दिया और मरफानी साहब ने साइन कर दिया उसके लिए. अब उसने सिटीजनशिप फाइल नहीं करी. अब इस सवाल का जवाब आपसे एक वक्फे के बाद लेंगे क्योंकि बहुत से लोग इस सवाल का जवाब के मुंतज़िर हैं. छोटा सा एक वक्फा लेते हैं. मिसबा विद योर स्माइल एंड मरफानी साहब विद योर humble and beautiful smile and all the Nazreens stay with us. वक्फा लेते हैं. सामान में रखें. जब तक हमारी कम्युनिटीज और हमारे लोग और हम लोग मिलके नस्ल इंसानियत की खिदमत का जज्बा अपने साथ रखेंगे तो हमारी इबादतें, हमारी ज़कातें, हमारे सदके वो कायम व दायम रहेंगे अल्लाह की बारगाह में. मरफानी साहब, जो सर्विसेज आप कम्युनिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, और मिसबा चौधरी जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्विसेज हमारी नमाजों का, हमारी ज़कातों का, हमारी चैरिटीज़ का हिस्सा हैं. हमारा प्रोग्राम मजहबी नौयत का तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हम सब मुसलमान हैं और जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए मैं दुआगो हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात से कि आप दोनों की ज़िंदगियों और मालों और कामों में बरकतें अता फरमाएं. डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं. मरफानी साहब ने ऐसा सब्जेक्ट टच किया है कि आप यकीन करें कि इस सब्जेक्ट पे पता नहीं मरफानी साहब कहाँ से. मरफानी साहब, आपको होस्ट होना चाहिए, हम तो वैसे ही पापड़ बेच रहे हैं. तो जो इन्होंने सब्जेक्ट टच किए स्पॉन्सरशिप का, ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि हो सकता है 1-2 प्रोग्राम के बाद आपको हम दोबारा ज़हमत दें और सिर्फ इस सब्जेक्ट पे बात करें. मरफानी साहब ने मेरी स्पॉन्सरशिप फॉर एग्जाम्पल साइन कर दी. अब मैं बज़िद हो गया, मैंने सिटीजन नहीं बनना किसी भी वजह से, ठीक है. अब मरफानी साहब, जब तक मैं सिटीजन नहीं बनता, ही इज ऑन द हुक. इज दैट ट्रू और नो? देखें, आप जो पहले मैं बोली कि या तो जब तक वो यूएस सिटीजन बन जाए, ठीक है, वो कहते हैं कि जी यूएस सिटीजन बन गए, 5 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप यूएस सिटीजन बने, हमारी जिम्मेदारी खत्म. दूसरी सूरत हाल ये है जो कि आप कह रहे हैं कि अब जिद हो गए कि नहीं जी मैंने तो यूएस सिटीजनशिप लेनी नहीं है, मुझे तो बस ये इसी परमानेंट रेजिडेंट रहना. तो उस सूरत हाल में जो स्पॉन्सर है जिसने आपके लिए साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ. देखें, स्पॉन्सरशिप इट्स अ साइंड कॉन्ट्रैक्ट. आप जब एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें से निकलने के लिए जाहिर है यू हैव टू मीट द टर्म्स एंड द कंडीशंस. अब दूसरी एक कंडीशन, अगर इस सिचुएशन में कोई स्पॉन्सर जो उनसे हैं वो मुब्तला हो जाते हैं, इस सिचुएशन से उन्हें निकालने का दूसरा तरीका ये है कि वो साहब, वो एप्लीकेंट जिनके लिए, या ग्रीन कार्ड होल्डर जिनके लिए, जिनको स्पॉन्सर किया था उन्होंने, वो अपने 40 क्वार्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अर्न कर लेते हैं, जिसको हम क्रेडिट कहते हैं. अगर वो 40 क्रेडिट, जो यूजुअली 10 साल के टाइम पीरियड में अगर आप फुल टाइम काम कर रहे होते हैं तो 10 इयर्स टाइम पीरियड में वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है. सो 40 क्रेडिट आप अगर आप अर्न कर लेते हैं, दैट मीन्स कि आपके जो स्पॉन्सर हैं वो ऑफ द हुक हो जाते हैं. देन यू आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल एज अ परमानेंट रेजिडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. और आपके जो स्पॉन्सर जो बीच में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने I-864 फॉर्म, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट आपके लिए भरा था, ही इज ऑफ द हुक. अब स्पॉन्सर के बगैर तो गुजारा चलता नहीं है. और इसी पे आप अपनी थॉट्स भी कंक्लूड कर लीजिएगा, अनलेस के मरफानी साहब के पास कोई और क्वेश्चंस हो. लोग ये कह रहे हैं मिसबा कि मिसबा चौधरी, देन द स्पॉन्सर नीडेड ऑल द टाइम and this will this responsibility will discourage the people from sponsoring us. Is there anything a sponsor can do to cover themselves and still be able to sponsor? के मरफानी साहब continue to sign the documents, लोग आंसर करना कंटिन्यू रखें. देखिए, मारफानी साहब अगर स्पॉन्सरशिप साइन करते हैं तो अनलिमिटेड नंबर साइन नहीं करते जाएंगे, कि अगर 10 लोग उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि जी आप हमें स्पॉन्सरशिप, हमारा ये फॉर्म साइन कर दें, वो 10 के 10 को साइन कर देंगे. ही हैज लिमिट ऑन दैट, ठीक है. देन देयर इज आल्सो लिमिट एज पर के कौन आपका स्पॉन्सर है.
anybody and everybody cannot be your sponsor. There should be a relation established in between कि जी आप क्यों, आप किस लिए sponsorship का responsibility लेंगे. So आप अगर ये कह रहे हैं कि जी उनके लिए यही एक sponsor जो बंदा है उसके लिए यही बहुत बड़ा उसका क्या कहते हैं उसके सोड है या उसका डिफेंस है कि उसके पास enough अवेलेबल है, फंड्स अवेलेबल है, इनफ उनकी इनकम अवेलेबल है जिसकी बेस पे वो कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, आई एम विलिंग एंड आई एम कंफर्टेबल इन राइटिंग दिस स्पॉन्सरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मुझे पता है कि मैं आई विल नॉट लेट माई एप्लीकेंट बिकम अ पब्लिक चार्ज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ऑल दिस टाइम पीरियड. अब वो टाइम पीरियड क्या होता है? नंबर 1, जैसे हमने पहले कहा, जब तक कि वो सिटीजन बन जाए. देखिए, जब आप ग्रीन कार्ड पे इधर आते हैं या आप परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, यू हैव द एबिलिटी टू वर्क. आप बाहर जाते हैं, आप काम करते हैं. मोस्टली ये होता है कि जिन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है या जिन्होंने स्पॉन्सरशिप आपका फॉर्म्स भरे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उनके लिए आप लाइबिलिटी नहीं बन रहे होते हैं, जो मैंने आज तक देखा है. रेयरली दिस हैपेंस कि कोई ऐसी सिचुएशन इन्वॉल्व हो जाती है कि उनके लिए इस लाइबिलिटी को पूरा करना मुश्किल हो जाता है. ठीक. नंबर 2 बात ये कि स्पॉन्सरशिप, जो स्पॉन्सर बंदा एग्रीमेंट साइन करता है, वो अपनी पहले एबिलिटी दिखाता है कि उसके पास कितनी इनकम है, वेदर ही और शी हैज द एबिलिटी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनके टैक्स रिटर्न्स जाती हैं साथ, उनके W2s जाते हैं, उनके सारे फॉर्म्स जाते हैं. सो दैट restrains the liability at that level कि आप कितने लोगों के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, whether you are able to fulfill that responsibility. So इसीलिए इसको कहते हैं, जब मैंने पहले कहा कि this is an बहुत शुक्रिया मिस्टर मारवानी साहब. बहुत ज्यादा लोगों को नहीं करना आपने साइन. क्वेश्चन कीजिए अपना. एक सवाल है, मैं आजकल के हालात के तहत एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल जो गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस चेक देना शुरू किया और वो सारे लोगों को मिल रहे हैं, चाहे वो सिटीजन है, चाहे ग्रीन कार्ड है, चाहे स्टूडेंट है, क्या उसको सोशल सिक्योरिटी है. तो वो एक इमरजेंसी हेल्प गवर्नमेंट ने दी है और मेरा ख्याल है कि ये जो गवर्नमेंट की हेल्प मिल रही है ये उनकी सिटीजनशिप पे इफेक्ट नहीं करेगी इंशाल्लाह. जी बिल्कुल नहीं करेगी. जैसे जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि अप टू डेट देखिए रूल्स चेंज हो सकते हैं, राइट. अभी तक जो इम्प्लीमेंटेड रूल्स नजर आ रहे हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन उन्होंने मेंशन नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दिस इमरजेंसी सिचुएशन व्हिच पीपल आर फेसिंग राइट नाउ. सो अगर इस तरह की कोई असिस्टेंस देते हैं जी, आजकल तो तकरीबन रूल सस्पेंडेड है, बहुत सारी चीजें उन्होंने मतलब अवॉइड कर दी. बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रही थी. हाँ जी, हाँ जी, जो पहले भी इम्प्लीमेंट हुए हैं, जैसे कि पब्लिक चार्ज के रूल्स इम्प्लीमेंट हुए थे, वो इस वक्त इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं. जैसे अब आप कहते हैं ना कि जी इमिग्रेशन में सर्टेन चीजें हॉल्ट पे आ गई हैं, इंटरव्यूज हॉल्ट पे आ गए हैं, बिल्कुल इसी तरह ये सिचुएशन भी हॉल्ट पे आ गया और इसको क्वेश्चन इतना नहीं किया जा रहा. लेकिन कोई भी इमरजेंसी असिस्टेंस जो है दैट इज नॉट गोइंग टू बी क्वेश्चन अंडर द करंट सिचुएशन. मैं थोड़ा सा टाइम है सर, टाइम है. जी सर, हमारे पास 2 मिनट बच के. पब्लिक असिस्टेंस के लिए आपने कहा और जैसे चिप की बात हुई है और उसमें प्रेगनेंसी का जो इश्यू है, तो प्रेगनेंसी के लिए ये है कि जब कोई भी यहाँ जो है उसकी प्रेगनेंसी के लिए डिक्लेयर हो जाती है, उसका रिकॉग्नाइज हो जाती है, डायग्नोज हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट उस बच्चे की तरफ आ जाती है. जो प्रेगनेंसी की कवरेज है या बच्चा जो पैदा होता है वो अमेरिकन सिटीजन होता है, तो वो सारा केस जो मैं अब तक करता रहा हूँ वो ये पब्लिक असिस्टेंस से हट के चला जाता है, क्योंकि वो इंश्योरेंस अगर माँ को प्रेगनेंसी जब देती है गवर्नमेंट तो वो बच्चे की वजह से है, और जब बच्चा पैदा होता है वो अमेरिकन सिटीजन होता है और उसको फिर 18 साल तक वो चिप में. तो ये जो एक इश्यू है, जो कंफ्यूजन मेरे दिमाग में पैदा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में वो माँ है जो प्रेग्नेंट है तो वो असिस्टेंस लेते हैं, तो वो इनके सिटीजन पे या किसी चीज पे इफेक्ट मेरे ख्याल में नहीं करेगा. आप थोड़ी सी वजह करते हैं. देखिए, जो यूएस सिटीजन बच्चा पैदा होता है ना, वो तो एज अ राइट उससे किसी चीज का क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. ही इज एलिजिबल टू और शी इज एलिजिबल टू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स एज अ यूएस सिटीजन. लेकिन यूएस सिटीजन बच्चा पैदा करने से माँ सिटीजन नहीं बन जाती है. माँ को जो टेम्पररी इंश्योरेंस मिली है या कोई असिस्टेंस मिली है, if that assistance is not qualifies under the emergency assistance in the current situation,
that is questionable. So अगर ऐसा कोई भी पैसा लिया जाए या जिम्मेदारी ली जाए या असिस्टेंस ली जाए तो जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की, और वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने ये लिया है, ये अचीव किया, दे हैव टू रिटर्न इट बैक. वो आप कोई भी डील करें, जैसे आपने कहा कि किस्तें बनवा लें, वो बैठ के उनसे बात कर लें केस वर्कर से कि जी हमारे पैसे रिड्यूस कर लें, दिस इज आवर एबिलिटी टू पे, हम इतना आपको पे कर देते हैं. दे कैन टॉक टू देम, दे कैन सेटल डाउन ऑन दैट, बट दे हैव टू पे. Misbah, we can go on for a long time. 2 minutes left, Marfani Saab. Misbah, just give us in 30 seconds some parting remarks, and we will love to have you back after a couple of shows. I think हम लोग discuss करेंगे detail में with example ये जो चीजें हैं. तो Misbah, your closing remarks before we go to Marfani Saab. हाँ जी बिल्कुल. मैं अभी हमने ज़ाहिर है बात की, हमारे पास इतना जितना मुख्तसर टाइम था उसमें एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो हमने डिस्कस किया है, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट का, पब्लिक असिस्टेंस का, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ी नीड ऑफ द टाइम है. ठीक है, हमने उसके बारे में बात की. एक और बात जो मैं समझती हूँ, जो मैं बात करना चाह रही थी लेकिन हमारे पास अभी ज़ाहिर है इनफ टाइम नहीं है इस प्रोग्राम में, एंड होपफुली इंशाल्लाह आई विल कम लेटर ऑन एंड विल टॉक अबाउट इट एंड डिस्कस द इशू. वो है डोमेस्टिक वायलेंस का इशू, और किस तरह इमिग्रेशन के अंडर, वावा और यू वीजा के अंडर विक्टिम ऑफ वायलेंस और जो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज होते हैं उनको हम किस तरह असिस्टेंस इमिग्रेशन में मिलती है और किस तरह लोग क्वालिफाई कर रहे हैं. बिलीव मी, there is so much need for that. So मैं ये समझती हूँ कि it's very important कि इस इशू को हैंडल करें, इस इशू को एड्रेस करें. मारफानी साहब और इस चीज को कम्युनिटी में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है कि वो ख्वातीन, और बिलीव मी ख्वातीन नहीं सिर्फ मर्द हजरात भी इसके शिकार होते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, जो वावा के अंडर क्वालिफाई करते हैं, और उसके अलावा जो विक्टिम ऑफ वायलेंस है, किसी भी किस्म का यूएस में स्टे के दौरान वायलेंस का शिकार हुआ है, इवन इफ दे आर नॉट इन स्टेटस राइट now they are qualified for that. So it is very important to discuss these issues कि आपके पास जो लोग आते हैं इस तरह के इश्यूज के साथ, उन लोगों को इमिग्रेशन. थैंक यू अटॉर्नी मिसबा चौधरी. मारफानी साहब, अगले प्रोग्राम के बारे में 30 सेकंड्स बच गए, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बता दें नेक्स्ट प्रोग्राम का स्ट्रक्चर. मिसबा, थैंक यू वेरी मच. आपको इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा बुलाएंगे. आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू को रेज किया और ये फैमिली वायलेंस को डेफिनेटली अलग से करेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में. हमारे थैंक यू वेरी मच मिसबा. अगले प्रोग्राम में माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के ऑनरेबल काउंसिल जनरल तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में. और अगले जो प्रोग्राम है वो हमारा 3 बजे शुरू होगा यहाँ इंशाल्लाह. और आप लोग तैयार हैं कि पाकिस्तान के काउंसिल जनरल ऑनरेबल यहाँ तशरीफ लाएंगे और उनका भी स्लाइड भी चलाएंगे हमारे यहाँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा और मेरी दरख्वास्त है कम्युनिटी से कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और बहुत सारे सवाल पूछे. हमारे जो काउंसिल जनरल साहब हैं वो माशाल्लाह खाली पाकिस्तान को ही नहीं रिप्रेजेंट किया, आज उन्होंने आके साबित कर दिया है कि वो तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी कम्युनिटी सर्विस के मालिक है और उन्होंने अपने चंद महीनों की प्रेजेंस में साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन पूरी कम्युनिटी में उन्होंने जो काम किया इंशाल्लाह उसके बाद. उसके अलावा 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दूं. एक तो अगले सैटरडे को इंशाल्लाह IEH की मसाजिद में कोविड के फ्री टेस्ट है. कुछ 600 टेस्ट किट्स मिली है और वो मस्जिद में अनाउंसमेंट ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे भी है और अनाउंसमेंट कर दिया गया है. तो वो मसाजिद में आप सकते हैं. और दूसरी को मस्जिद टाइम है, मेरे को 2 चीजें बतानी थी. तो बस टाइम तो खत्म हो गया, जल्दी से. रेंट में हेल्प कर रही है. आप रेंट के लिए, फूड के लिए और दूसरी मदद के लिए आप मुझे रब्ता करें. मेरा फोन नंबर और वेबसाइट बता रहे क्वेश्चंस के लिए नाज़रीन आप हमारे खूबसूरत, हमारे प्यारे मारफानी साहब से उनके फोन नंबर पे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं. स्क्रीन में बॉटम में 8326601848 मारफानी साहब का नंबर है. वी थैंक यू मिस्बा चौधरी फॉर ज्वाइनिंग अस. नाज़रीन, जब तक जुल्म और सितम की दास्तान सारे मुल्कों में चलती रहेगी, अल्लाह की रहमत हमारी तरफ शायद ना आ सके. इसी तरह से जब तक हम लोग सब के सब मिल के हेल्प करने का, एक दूसरे को ताकतवर बनाने का नहीं सोचेंगे तो इस तरह के मसाइल हमारे साथ चलते रहेंगे. आप लोगों से अगले हफ्ते 3 बजे यहीं पे कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इब्रार हाशमी और महमूद मारफानी के साथ मुलाकात होगी और उसके प्रोग्राम के शुरू में हम आज के प्रोग्राम की कुछ स्लाइड भी चलाएंगे. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम. हमारे साथ रहेगा 3 बजे अगले संडे को मिलते हैं आपसे.